Welcome back to our YouTube channel Crazy Education XYZ. Today we will study the chapter number 16 of class 7th science book. Water a precious resource. Jal hai to kal hai. If you have water, you can think of the future. You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. All of you know that 22 March we celebrate the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1. This is the posters. What is the message you get from these posters? Tell me and comment. Write your observation in your notebook and discuss them in the class. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? क्या आप लोगों ने कभी पानी की कमी महसूस की अपने घरों में या फिर स्कूल में? Your parents or teachers must very often be advising you not to waste water. आपके घर में मम्मी पापा कभी पानी लाइट नहीं रहती होगी तो पानी के लिए बहुत बोलते होंगे कि पानी को सेफ रखो. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. हमें पानी की बचत करनी चाहिए क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तब हमें उसकी कीमत पता चलेगी. The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining paper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. This amount is about 2.5 bucket of water per person per day. If your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? Share your experience with them. हमें पानी की बचत करनी चाहिए. हमारे पास पानी जब तक रहता है तब तक हम उसकी कोई कीमत नहीं समझते हैं और जब नहीं होता है तब हमें उसी की चीज़ की कीमत समझ में आती है. कोई भी चीज़ की कीमत तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होता है. तो वैसे ही पानी भी है, पानी है तब तक हम उसको वेस्ट करते रहते हैं और जब पानी नहीं रहता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है. तो इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड कंजर्व, हमें कंजर्व करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए. In some places there is an acute shortage of water. Taps running dry, long queues for water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. Some of the newspaper clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message. Is it not true that we face acute shortage of water? ये रहा जो क्लिप है जो हम गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है वाटर की. बहुत कुछ हो जाता है वाटर को लेकर के जो न्यूज़पेपर्स में छपे रहते हैं. दिस इज गिवन इन द 16.3 न्यूज़पेपर क्लिप है और ये है लॉन्ग क्यून फॉर वाटर. लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं पानी लेने के लिए. एक टैप है और पानी कहीं नहीं है, एक टैप में आ रहा है तो वहाँ लोग लंबी लाइन लगा लेंगे गर्मी में पानी के लिए. एक्टिविटी 16.1 ये आप पढ़ लेना खुद से. हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज 16.1 हाउ मच वाटर इज अवेलेबल. दिस इज अ टॉपिक. लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. व्हाई डज इट अपीयर ब्लू? श्योरली वी कैन गेस. You are aware that about 71% of the earth surface is covered with water. हमारे अर्थ का जो 71% है वो पूरा पानी है. ओशीज, ओशियंस बहुत कुछ है जो 71% पूरा वाटर ही है. Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, river, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. जो मैंने अभी आपको बताया seas, ocean, river, lake, ice caps and groundwater है और एटमॉस्फेयर में है. उतना पूरा 71% जो हमारा अर्थ का है वो पूरा कवर्ड है पानी से. that is water. However, most of these water is not fit for human consumption directly. बहुत सारे ऐसे पानी जो हैं इतने, लेकिन वो हम लोग ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. कि जैसे अब ग्राउंड वाटर तो डायरेक्टली तो लेंगे नहीं, उसे वेल करेंगे, वेल बनाएंगे, मतलब कुआं बनाएंगे तभी उसको ले पाएंगे. तो इसका मतलब वही है. The water that is fit for us is fresh water. Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. So ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं. 16.2 most of us assume water to be limitless resource. From this activity you can appreciate the actual amount of water
available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your class. ये एक्टिविटी आप अपने से पढ़ लेना, कर लेना. ओके कोई नहीं, मैं पढ़ा ही देती हूँ. स्टेप्स. Steps are: take a medium sized bucket and fill it up with water. It contains about 20 लीटर of water. एक बकेट लेना जो कि 20 लीटर वाटर हो, जिसमें अट जाए. फिगर में दिया हुआ है वैसा ही, ठीक है. रिमार्क. Assume that this water represent all water present on the earth. एज्यूम करना कि जितना वाटर है प्रेजेंट हो और अर्थ पे. Take a teaspoon of about 5 ml capacity and transfer 100 spoon of water from the bucket to a small container like a bath mug. Do this. This represents total fresh water on the earth. From the bath mug, transfer 30 spoons of water to a glass tumbler. This gives a measure of usable water present as groundwater. Finally, take out a quarter 1/4 spoonful of water from the mug. It represents all the water present in all the lakes and rivers of the world. The water left in the bucket represents the saline water present in the seas, oceans, and partly as groundwater. This water is not fit for human use. The water left in the bath mug represents the water which is present in the frozen form in glacier, ice caps, and permanent snow, again not available readily. So you read this activity, and if you don't understand very well, then comment in the comment box. I will explain in next video. Forms of water. Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. वाटर साइकिल के लिए बहुत मिलियन ईयर से हम वाटर साइकिल की प्रोसेस होती आ रही है. तो वाटर कंज्यूम होता है उसमें, तभी होता है ये वाटर साइकिल. यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6th. Write in your own word what you know about the water cycle. You can write in your notebook. You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms. That is solid, liquid and gas. The water cycle सर्कुलेट करता है तो वो तीनों फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में भी होता है. एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ पे हम उसे तीनों फॉर्म में देख सकते हैं. जब वाटर साइकिल सर्कुलेट करता है तो हम वाटर साइकिल को तीन फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. अर्थ पे ही देखते हैं. द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. हम जो सॉलिड फॉर्म है वो स्नो आइस के फॉर्म में देखते हैं, ग्लेशियर्स पे देखते हैं, माउंटेन्स पे देखते हैं. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट ऑन द ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. लिक्विड फॉर्म को हम ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर, ओशियन, लेक, रिवर इन सब के फॉर्म में देखते हैं. द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. जो एयर हमारे तरफ मतलब हमारे अराउंड में है, सराउंडिंग में है, उसमें भी वाटर होता है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है. वो गैस फॉर्म में, तो इसलिए हम देख उसे नहीं सकते हैं. आप लोग ठंडी के टाइम में देख सकते हो ये गैसियस फॉर्म में. कोहिरा जो होता है ना, वो गैसियस फॉर्म में होता है. द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Do it gives you any relief? Can you recall the process involved in water cycles? The following activity will help you. You read this activity by your own, and if you don't understand then tell me. Okay, we just move to the next topic, that is groundwater as an important source of water. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. जब हम होल करेंगे, डिग करेंगे, खोदेंगे गड्ढा ग्राउंड पे, वाटर बॉडी, वी में फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट. जो मिट्टी है जो नीचे की, वो थोड़ी मुलायम होगी, मॉइस्ट होगी. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. जो मिट्टी मॉइस्ट है जहाँ पे, मतलब वो समझेंगे कि वहाँ पे वाटर है, अंडरग्राउंड में पानी. अगर हम उसे खोद देते हैं तो हमें पानी मिल जाएगा. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. जब हम एकदम गहरा खोदेंगे तो एकदम नीचे होगा, वहाँ पे वाटर हमें अवेलेबल फील होगा. रॉक्स होंगे, जब सॉइल के नीचे जाएंगे तो रॉक्स होंगे, रॉक्स के बीच में पानी मिल जाएगा हमें.
द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और जो पहला लेवल होगा वाटर का, अपर लेयर, जब हम खुदाई करने के बाद जब हमें पानी का पहला लेवल मिलेगा तो वो वाटर लेवल उसको हम बोलते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and it may even change at a given place. The water table may be at depth of less than a meter or maybe several meter below the ground. The water found below the water table is called groundwater. जब वाटर टेबल के नीचे का पानी जो हमें मिलेगा वो ग्राउंड वाटर हम उसको बोलेंगे. What is the source of this groundwater? The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. जब बारिश होती है तो वाटर क्या होता है, सूख जाता है. वो सूखता भी है और कुछ सूख के कहाँ जाता है पानी, कुछ तो ऊपर चला जाता है आसमान पे और कुछ तो अगर मिट्टी पे गया तो वो मिट्टी के नीचे चला जाता है जो कि हमारा ग्राउंड वाटर बन जाता है, सॉइल में कंज्यूम हो जाता है. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. जो वाटर ग्राउंड में सिप करता है उस प्रोसेस को इनफिल्टरेशन कहते हैं. ये हाईलाइटेड ऑलरेडी है, उसे पढ़ लेना. इनफिल्टरेशन, this is important. The groundwater thus gets recharged by this process. At place, the groundwater is stored between layers of hard rock below that water table. This is known as an aquifer. जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है लेयर्स के बीच में, हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल के नीचे, उस लेवल को उसे हम कहते हैं एक्वीफायर. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन. द ग्राउंड वाटर थस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. एट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एन एक्वीफायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न दिस, रिमेंबर. ओके. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. जो वाटर है एक्वीफायर में उसे हम पंप से या फिर ट्यूब वेल से या फिर हैंड पंप जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, उससे हम उसे बाहर ला सकते हैं उस पानी को जो एक्वीफायर में. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्किंग इज गोइंग ऑन? From where do the workers get water for construction? Maybe you have seen boring being done at such site to reach the water table. शायद आप कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बोरिंग होते हुए देखा भी होगा. Enquire from the people working there how deep they have to dig. Can we keep on drawing water from the under the ground? How will it affect the water table? बोरिंग करते हुए अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बोरिंग जो करते हैं उन लोगों से आप जिसके घर में हुआ होगा वो पूछ सकते हैं कि कितना नीचे पानी रहता है. वो लोग बताएंगे आप लोग को अगर मिल पाएंगे तो. वैसे हम बता देते हैं कि बहुत नीचे पानी होता है, ऊपर नहीं मिलता है जल्दी पानी. Now we move to the next topic, that is 16.4, deflection of water table. Water drawn from under the ground gets restored by sipping of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process. Water table affect नहीं होता as long as we draw as much water as is replenished by natural process. ठीक है. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ पानी का होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए वाटर टेबल इससे अफेक्ट हो गया है. पानी बहुत कम मिलने लगा है, ऊपर बहुत नीचे पानी चला गया है. अब तो पहले तो मिल भी जाता था लेकिन अब नहीं इजीली पा सकते हैं वाटर टेबल ऊपर. Secondly, scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. और रेनफॉल भी बहुत कम हो गई है इसलिए वाटर टेबल नीचे चला गया है. Yet another fact affecting water table could be deforestation and decrease in the affecting area for seepage of water. Deforestation भी एक वे है जिससे पानी की कमी हो गई है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये सब हेडिंग है, मतलब इस टॉप 16.4 के अंदर ये टॉपिक है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स. पॉपुलेशन डेली टू डेली बढ़ रही है
तो फिर इसकी कंस्ट्रक्शंस हाउस की डिमांड हो गई है, शॉप्स, ऑफिस, रोड, पेवमेंट, सब चीज़ की डिमांड बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, जिससे इंक्रीज पॉपुलेशन के सब बनने की वजह से पार्क्स और जो ओपन प्लेग्राउंड्स है सब की कमी हो गई है, ओपन प्लेस मिलता ही नहीं है हम लोग को कहीं जल्दी। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। तो जब खुली एरिया नहीं मिलेगी तो पानी कहाँ से अंडरग्राउंड में जाएगा? जब घर, हाउस, बिल्डिंग सब बनी रहेंगी तो पानी तो अंडरग्राउंड में जाएगा नहीं, तो पानी की कमी हो जाएगी। What could be the consequence? Recall that a पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन इजिली। अब आपका बिल्डिंग है, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अब छत पे का पानी तो अंडरग्राउंड में जाएगा नहीं, तो इससे पानी की शॉर्टेज ही तो होगी ही। While in a grass lawn, water seeps through in no time. Moreover, a huge amount of water is required for construction work. और हमारा घर बनेगा तो बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन घर बनने में। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़, और इसके लिए हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर हैंड वी आर अलाउिंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। हम घर बनने के लिए हमें बहुत सारे पानी चाहिए, और जिसे हम अंडरग्राउंड से पानी ले रहे हैं और घर बना दे रहे हैं, फिर हमें पानी के लिए जगह, पानी वो जो सीप करता है, जो पानी ऊपर से सीप करता है अंडरग्राउंड में जाता है, उसके लिए हमें कमी हो जा रही है। तो यही है कि पानी की कमी बहुत है। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इन फैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मेनी सिटीज हैज़ गॉन डाउन टू अलार्मिंगली लो लेवल्स। वो किसी सिटीज़ में तो इतना नीचे पानी चला गया कि बहुत मुश्किल है कि अगर हम उसे बोरिंग करवा लें तो हमें पानी बहुत ऊपर मिल जाए। बहुत रेयर केसेस ही होंगे जहाँ ऊपर मिल जाएगा, लेकिन अब सिटीज़ में तो बहुत मुश्किल हो गया है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, वाटर इज़ यूज बाई ऑल द इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। हर इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत है, हर प्रोडक्शन, हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्री हो गई हैं। हम छोटे शहरों की बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े शहरों में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें उतनी ही पानी की ज़रूरत होगी, तो वही पानी की कमी होगी ही। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंगली काउंटेड इंडस्ट्री, और डेली टू डेली इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। वाटर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री पानी ग्राउंड वाटर से ही लेती हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी आप अपना पढ़ लेना 16.4। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स in India depend upon rains for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there are only in a few places. एग्रीकल्चर में तो सभी को पता है कि पानी का यूज़ होता ही है, फार्मर्स को बहुत ज़रूरत है, और इंडिया में तो एग्रीकल्चर बहुत ही टॉप पे है, तो इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन दिस सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल की कमी की वजह से पानी की बहुत कमी हो गई है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब खेताई जोताई जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी। सो उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो अब फार्मर्स कहाँ से लेंगे इरिगेट करने के लिए अपने प्लॉट को? तो वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि बारिश की कमी हो गई है, रेनफॉल बहुत कम होती है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजेज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। तो डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर पे भी प्रेशर है, तो पानी की ज़रूरत भी उतनी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। दिस रिजल्ट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, जिससे वाटर टेबल हमारा नीचे चलता ही जा रहा है। 16.5 आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ रेन बहुत ज़्यादा होती है और वाटर रिच है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, और डेजर्ट एरिया में तो पानी बहुत ही कम है, शायद साल में 1-2 बार हो जाता होगा, हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन बहुत ही कम डेजर्ट में पानी मिलता ही नहीं है, तो आपको पता ही है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया में हर जगह एक समान बारिश नहीं होती कि एक पूरे इंडिया में एक साथ बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम होती है, कहीं ठीक ठाक होती है। Some regions have excessive rain while some other are very little rainfall. Excessive rain cause floods whereas the absence of rainfall results a drought. जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसे बाढ़ बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं।
और कहीं कहीं पानी की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती है, तो वहाँ सूखा पड़ जाता है, उस सूखा को हम बोलते हैं ड्रॉट। Therefore, some regions in our country may have flood while other may suffer from drought at the same time. एक ही समय में, जैसे किसी जगह पे अभी बाढ़ आई हुई है तो किसी जगह पे सूखा पड़ा हुआ है, मतलब किसी जगह फ्लड है तो किसी जगह ड्रॉट है। एक टाइम में हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग इस दोनों केस सफ़र करते हैं। ठीक है, our next topic is water management. You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. ठीक है, when the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. और हमारे सिटीज़ में या कहीं कहीं सप्लाई का भी पानी यूज़ होता है, कहीं कहीं जनरली बहुत जगहों पे यूज़ होता है सप्लाई पानी, जो कि सिविल अथॉरिटीज़ सिविक मतलब गवर्नमेंट पानी देती है। सरकार जो है हमारी सरकारी पानी होती है, वो उसे ही हम सप्लाई वाटर बोलते हैं, जो कि पाइप्स के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। और ये पाइप कहीं कहीं लीक हो जाती है, पानी वेस्ट होता रहता है, जिसकी कोई ध्यान ही नहीं देता, और फिर पानी का वेस्टेज होता रहता है, और इसकी इतना मूल्यवान पानी हमारा चला जाता है, तो उसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए, और ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविक अथॉरिटीज़ को इस पे ध्यान देना चाहिए। Mismanagement or wastage may take place at the level individual also. All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. हम लोग अनजाने में भी बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं। ब्रश करते रहते हैं, पानी का टैप खुला है, पानी गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है पानी। नहाते टाइम, बर्तन धुलते टाइम, कपड़े धुलते टाइम, शेविंग करते टाइम, कोई शेव कर रहे हैं बेसिन के पास खड़े होके, पानी गिर रहा है, बहता जा रहा है। सो वी शुड ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे कि पानी वेस्ट ना हो। वी वेस्ट वाटर एज थ्रू वी डू नॉट नीड वाटर एट द नेक्स्ट टाइम। हम ऐसे वेस्ट करते हैं पानी जैसे हमें नेक्स्ट टाइम पानी चाहिए ही नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए वेस्ट, हमें ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. और जो हम लोग देखते हैं कि पानी जनरली जो रेनफॉल से मिलता है वो फ्लो हो जाता है, बह जाता है ऐसे ही। दिस इज़ द वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, जिसे हम वेस्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा, उसे हम वेस्ट करते हैं। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। हम रेन वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। दिस इज़ रेफर्ड एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 6 में। ओके, फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। किसी बहुत कम केसेस मिलते हैं जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम यूज़ हुए होते हैं, घरों में लगे होते हैं, जो कि यहाँ पे हर घर आप लोगों ने देखा होगा, शायद ही देखा होगा, जनरली नहीं होता है। We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the Bawri was the traditional way of collecting water. With time, the Bawris will into disuse and garbage started filling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The Bawris are being revived. Today, the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs level. ठीक है, a farmer using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard of drip irrigation. Drip irrigation के बारे में आपने शायद सुना हो। Drip irrigation is a technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly to the base of plant. ड्रिप इरिगेशन वो प्रोसेस है जो कि डायरेक्टली पाइप्स को प्लांट्स की जड़ों के पास पहुंचा दिया जाता है, उसी को हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। केस स्टडी है, ये आप खुद से पढ़ लेना जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है।
ठीक है. So we move to the next topic, that is what role you can play. Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school, or any other place? Leaking taps waste a lot of water. You must make efforts to stop this leakage. आप अगर कहीं भी देख रहे हो आप पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको स्टॉप, रोको. कहीं भी हो आप, पब्लिक प्लेस पे हो, स्कूल पे हो, घर पे हो, कहीं भी. ओके. There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. Add on ये keywords. Example: water wise habits. Turn off taps while brushing. Mop the floor instead of washing. Okay, ये दो है एग्जाम्पल जिससे हम पानी को बचा सकते हैं. ठीक है. इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ वाटर scarcity on plants. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. You have already learnt in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequences if water is not available to plants. The green character of the plant shall be lost. This may be in the end of all life. For a world without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain, and innumerable other problems. So हमें plants को भी बचाना चाहिए. ओके, क्योंकि प्लांट्स से ही बारिश भी होती है. आप लोगों ने पढ़ा होगा नेक्स्ट लास्ट ईयर इन योर क्लास 6th बुक अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव. ये आप लोग पढ़ लेना खुद से, कुछ ज़्यादा पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली रीड. हमारा जल हमारा जीवन. जल है तो जीवन है, मतलब पानी है तो हमारी लाइफ है, हमारा फ्यूचर है. सो वी, मतलब पूरा कंक्लूज़न ये होता है कि हमें पानी को बचाना चाहिए कैसे भी करके. कहीं भी अगर हम पानी को वेस्ट होते देख रहे हैं तो पानी को हमें कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा फ्यूचर है. अभी हमें उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही, जब नहीं होता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है. एक एक बूंद से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. सो ये कीवर्ड है, आप लोग पढ़ लेना. और फिर ये है exercises. If you want to exercises, so comment in the comment box. I will make another video in the for the exercise. Okay, thank you and have a nice day.